Shri Akal, Namaste, welcome back to my channel. My name is Ms. Amandeep Kaur. So I am back with subject EVS of 5th class, chapter 13, deficiency diseases, जिसका मतलब है जो कमियों की वजह से होती हैं बीमारियां, उनके बारे में पढ़ेंगे. Daksh talked to his father about a medical camp held in his school yesterday. He said that a team of doctors and nurses checked up all the students of the school. The doctor sent for the parents of few sick children to school. दक्ष अपने फादर से बात करता है कि उसके स्कूल में कल एक मेडिकल कैंप था जिसमें डॉक्टर्स आए थे और नर्सेज आए थे जिन्होंने सारे स्टूडेंट को चेक किया और उनके पेरेंट्स को बुलाया जो बच्चे सिक थे, बीमार थे. Some mothers told the doctors about the weakness of their children as they got tired so soon seeing white patches on their nails. The doctor told them that their children were suffering from anemia, a deficiency disease. For treatment, the nurse gave tablets of iron, folic acid and advised them to take the tablets twice a week after meal. कुछ मदर्स ने बताया कि उनके बच्चे बहुत जल्दी थक जाते हैं, वीक हो जाते हैं और उनके नाखून के ऊपर वाइट धब्बे दिखाई देते हैं. तो डॉक्टर ने उनको बताया कि इनको अनीमिया हो गया है, ये भी एक डेफिशिएंसी डिसीज है, इसको क्योर किया जा सकता है उनको आयरन और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स देकर, मींस गोलियां देकर, और ये उनको खाने के बाद वीक में 2 बार लेनी है. Ravneet complained that she cannot see properly at night. Doctors checked her eyesight and told that the child is suffering from night blindness. If the child would have taken milk, leafy vegetables and fruits, she would not have suffered from this disease. इसमें बताया गया, रवनीत ने बताया कि वह रात को प्रॉपरली देख नहीं सकती है. जब उसकी आई से चेक की गई तो पता चला कि उसको नाइट ब्लाइंडनेस है, मींस वो रात को अच्छे से देख नहीं सकती है. इसके लिए उसको मिल्क पीना होगा और पत्ते वाली सब्जी खानी होगी, फ्रूट्स खाने होंगे, जिससे वह बीमारी ठीक हो सकती है. अभी पिक्चर्स देख सकते हो, वीक चाइल्ड और अनीमिया, राइट. After seeing an extremely weak child of 3 or 4 years, the doctor said that the child suffering from protein energy malnutrition. The child was weaned of mother's milk at early age. Mother's milk is very important for the healthy life of a child. डॉक्टर ने बताया कि कुछ बच्चे 3-4 साल की एज में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं. उनके बारे में बताया गया कि उनको प्रोटीन की कमी हो गई है. उनको माँ का दूध बचपन में छोटी एज में मिलना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी कमी की वजह से ही इनको ये बीमारी हुई है. हम क्वेश्चंस को स्किप करेंगे. अब some children complained of headache and tiredness. The doctor advised them to eat green leafy vegetables, kidney beans and chapatis of unsieved flour so that they may be saved from beriberi disease caused by deficiency of vitamin B. कुछ बच्चों ने बताया कि उनको सरदर्द और जल्दी थक जाते हैं, तो डॉक्टर ने उनको बताया कि उनको पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, किडनी बीन्स मीन्स राजमा खाना चाहिए, चपाती खानी चाहिए, वो भी जो ऐसा आटा हो जो छना हुआ ना हो, राइट. इससे क्या बेरी बीमारी से बचा जा सकता है जो कि विटामिन बी की कमी से होती है. द टीथ ऑफ सम चिल्ड्रन वर नॉट नॉर्मल एट ग्रोथ and their bones were also bent and weak. The doctor said that because of deficiency of calcium, phosphorus and vitamin D, those children suffered from Richter's bow-shaped bones and osteomalacia, weak and fragile bones. Nurse advised him to take diet rich in calcium and phosphorus, milk, eggs, cheese, to sit in sunlight in early hours to cover up the deficiency of vitamin D. कुछ बच्चों के दांतों में प्रॉब्लम होती है, सही ग्रोथ नहीं होती है, तो उनमें कमी होती है विटामिन डी की, फास्फोरस और कैल्शियम की, जिसकी वजह से उनकी बोन क्या टेढ़ी हो जाती है, उनकी शेप खराब हो जाती है, राइट. तो इसके लिए उनको एग्स और मिल्क लेना चाहिए और धूप में बैठना चाहिए ताकि उनको विटामिन डी मिल सके. तो आप देख सकते हो ये कुछ पिक्चर्स. डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम. अ चाइल्ड टोल्ड डॉक्टर दैट ही हैज swollen and bleeding gums. The doctor advised him to eat citrus fruits such as orange, musambi, amla in plenty to cover up the deficiency of vitamin C. These children suffer from a deficiency disease named scurvy caused by deficiency of vitamin C. बच्चों ने बताया कि उनके मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, तो डॉक्टर ने उनको बताया कि उनको सिट्रस फ्रूट्स खाने चाहिए जिनमें थोड़ी खटास होती है, जैसे कि ऑरेंज, मौसमी और आंवला, राइट. क्योंकि ये बीमारी होती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की कमी की वजह से, राइट. सो जिसकी वजह से स्कर्वी नाम का एक रोग हो जाता है, राइट. आफ्टर दैट द डॉक्टर एग्जामिन्ड अ चाइल्ड्स मदर. द लोअर पार्ट ऑफ हर थ्रोट वाज swollen due to the enlargement of gland. The doctor told her that she was suffering from a disease called goiter due to deficiency of iodine. She
could save herself from this disease by using iodized salt and eating seafood. डॉक्टर ने बताया कि एक बच्चे की मदर को ग्वाटर रोग हो गया है, मीन्स उसके गले में जो ग्लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, उसका साइज बढ़ चुका है। ये होता है आयोडीन की कमी की वजह से, इसलिए उसे आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए और सी फूड जैसे कि मछली वगैरह खानी चाहिए। At last, the doctor asked all the students how they come to know that they are hungry. Khushpreet said, "We are hungry. We feel tired, right? We cannot do our work properly. We can work only after taking some meals." The doctor told the parents of the children that most of their children were suffering from deficiency diseases. These diseases are caused due to the deficiency of carbohydrate, fats, protein, vitamin, and mineral in food. We cannot do any work properly due to deficiency disease, so we should eat a balanced diet containing all nutrients. We should never remain hungry. We should take our diet daily at the proper time. They gave a chart related to nutrients and balanced diet to the teacher. डॉक्टर ने बोला कि स्टूडेंट्स को पूछा उन्होंने सबसे पहले कि उनको कैसे पता चलता है कि उनको भूख लग रही है। तो एक बच्चे ने, खुशप्रीत ने बताया कि हम जब थका हुआ महसूस करते हैं, हम काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमें भूख लगी है और हम खाना खाकर ही अपना पेट भरकर ही काम कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने बताया पेरेंट्स को कि बहुत सारे बच्चों को डेफिशिएंसी डिसीज हैं जिसकी वजह से वे प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते हैं। ये होता है जब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो प्रॉपर्ली काम करने के लिए हमें अच्छा बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें हमें डेली प्रॉपर टाइम पे ही खाना खाना चाहिए। सो दिस इज इनफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।